Let's start to this topic. Today we'll be discussing theory topic, and we'll be starting with chapter number 2, which is hardware and software. I hope you already know a few of the things, and if you have studied computer science or ICT in O levels, so you may know quite a few things. But the thing is, when you're studying in A levels, it means you need a little more detail to everything. Since whenever we heard about, yeah, we talk about hardware and software, it looks like the answer topic hardware and software shouldn't be a problem. But we all know that hardware and software have a variety of different things. Let's talk about it. Let me share my screen, and I hope, okay, now you can see the whiteboard. So, when we talk about hardware and software, the most interesting thing is that these are two different types. Like, so we'll be starting with hardware. So, I write hardware first, and then we will talk about software. Hardware means all the tangible parts of a computer, means all those parts which can be touched, जिनका अपना वजन है, weight रखते हैं, जगह देते हैं. So all the tangible parts of a computer is called as hardware. Now hardware is very important because this hardware actually decides that how good the performance of your system is. ये हार्डवेयर ही डिसाइड करेगा कि आपके सिस्टम ने आपको क्या परफॉर्मेंस देनी है, उसमें क्या स्पीड आपको आनी है, how much storage you have and all that. When we talk about hardware, there are four parts of hardware. The four important, yeah, four big parts of hardware. I'm just talking about parts, and then we will subcategorize those parts. Number one is input devices. Number two is output devices. Number three is storage devices. And number four, and number four is CPU. CPU is central processing unit. So these are the four main hardware components of our system. Uh, Now the input devices are pretty much changed. Output devices are also pretty much changed. Storage devices, now we have a new kind of storage devices, smaller, bigger in sizes, size in terms of their storage capacity. So ये हमारे पास जो थोड़ा सा difference आ गया. Whereas CPU means the brain of a computer, which is uh, working in different capacity in running of your system, supporting your system in terms of power and all that. So when we talk about hardware devices, it means tangible parts which are touchable. Few of these, few of the input devices, few of the output devices, few of the storage devices, yeah, most of them are internal or external devices. यानी कुछ इनमें से इंटरनल होती है, कुछ हमारे पास एक्सटर्नल डिवाइसेज होती हैं. एक्सटर्नल मीन्स जो कि हमारे सिस्टम के बाहर नजर आ रही होती हैं, इंटरनल वो जो कि सिस्टम के अंदर रिजाइड कर रही होती हैं. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइस. देयर इज एन अदर वर्ड वी यूजुअली यूज, और तब हम क्या बोलते हैं, तब हम बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस. Whenever we talk about peripheral devices means all the secondary external devices. Now, what is meant by the secondary external devices? I am not talking about input or output. It could be input, it could be output, it could be storage even. But it means the secondary devices. Secondary means if you have those devices, it would be like very beneficial for you. If you don't, इट डजंट मीन यू कांट यूज योर कंप्यूटर. यानी ऐसा नहीं होगा कि आप अपना कंप्यूटर यूज नहीं कर सकेंगे, अपना कंप्यूटर यूज कर सकते हैं. पेरिफेरल सपोर्टिंग डिवाइसेस होती है, जैसे इफ वी टॉक अबाउट स्कैनर. स्कैनर इज अ पेरिफेरल डिवाइस. अब हाउ इट इज पेरिफेरल? इफ यू हैव अ स्कैनर यू हैव मोर यूटिलिटी. बट अगर स्कैनर नहीं है तो डजंट मीन कि यू कांट यूज योर सिस्टम. लाइक स्पीकर्स. स्पीकर्स हमारे पास पेरिफेरल डिवाइसेस हैं. तो इस तरह से हम थोड़ा सा मजीद कैटेगराइज कर देते हैं.
Since in our book they have discussed storage devices first, so we'll be starting with the storage devices. Now, when we talk about storage devices, so there are different types of storage devices we have. Right here. Now we will, what we do, we will be categorizing storage devices in different parts. Number one is called as primary storage devices, या इसको कोई कोई main storage devices भी कहता है. Whereas the second part is called as, second type is called as secondary, और इसके लिए कोई कोई लफ्ज इस्तेमाल करता है मेन मैस स्टोरेज का भी. सो बेसिकली हमारे पास जो है वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस. वन इज कॉल्ड एज सेकेंडरी and one is called as primary. And as its name shows, primary means primary storage devices. Primary means all those storage devices which can be used for the primary purpose. यानी प्राइमरी का मतलब ये हुआ कि अगर तो प्राइमरी नहीं होगी तो वी कैन नॉट रन आवर सिस्टम्स. अब इन्हीं को ये मजीद कैटेगराइज करते जाते हैं और फिर उनकी डिटेल में जो है वो डिस्कस करते जाएंगे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइमरी मेमोरी, सो there are two types of primary memories. One is called as RAM and second is called as ROM. RAM stands for Random Access Memory, whereas ROM stands for Read Only Memory. Now, first of all, when we talk about random access memory, RAM is very important memory. I usually say that RAM is one of those devices in your system which works so tirelessly, even more than your CPU. यानी इतना काम करती है कि वो आपके CPU को भी क्रॉस कर जाती है, हर वक्त काम कर रही होती है. As soon as you switch on your system, और जिस पॉइंट से रैम चलना शुरू होती है उसके बाद बस वो फिर काम करती रहती है बेचारी, उसको हम एक मिनट के लिए भी आराम जो है वो नहीं देते, सिंस इट्स अ स्टोरेज डिवाइस, लेकिन ये फिर भी इतना सारा काम कर रही होती है. अब ऐसा क्या काम है जो कि ये कर रही होती है वो मैं आपको बताता हूँ. अच्छा, अब जब हम रैम की बात करते हैं तो हम लोग ये कहते हैं, यहाँ जब आते हैं तो हम रैम की डिटेल्स थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं. तो एक तो रैम की जो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है वो ये होती है कि रैम इज हाई स्पीड मेमोरी. रैम इज अ हाई स्पीड मेमोरी. हाई स्पीड में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसने डायरेक्टली जो है वो सर्व करना होता है आपके सीपीयू को, प्रोसेसर को इसने डायरेक्टली सर्व करना होता है, इस वजह से ये एक हाई स्पीड मेमोरी होती है. अगर ये हाई स्पीड नहीं होगी तो हमारा प्रोसेसर जो है वो हमारी जिस स्पीड से काम करता है वो स्पीड से काम नहीं कर सकता. द रीजन बिहाइंड इज कि व्हेन वी आर गिविंग इंस्ट्रक्शंस, कमांड्स टू द कंप्यूटर, तो जनरली हमारी स्पीड जो है वो स्पीड नहीं होती जिस पे वो एंटिसिपेट कर रहा होता है. ये जो प्रोसेसर आपका एंटिसिपेट कर रहा है हम उस स्पीड से काम नहीं करते हैं. तो रैम का काम क्या है? रैम जो भी आप डेटा लिखते जाते हैं, कमांड्स देते जाते हैं, उसको अपने पास थोड़ी थोड़ी देर के लिए होल्ड करती है. जब वो एक पैकेट बन जाता है, चंक बन जाता है, उसको फिर वो ट्रांसफर करती है टुवर्ड्स द प्रोसेसर या जहां उसे ट्रांसफर करना होता है. सो पहली क्वालिटी तो रैम की ये है कि इट्स अ हाई स्पीड मेमोरी. दूसरे नंबर के ऊपर जो इसकी क्वालिटी है उसको हम लोग कहते हैं कि इट्स अ टेम्पररी मेमोरी. अच्छा, तो यहाँ जो है ना कुछ स्टूडेंट्स मुझसे हमेशा पूछते हैं सर ये क्वालिटी कैसे हुई, टेम्पररी मेमोरी तो फिर कोई क्वालिटी नहीं है ना. टेम्पररी मेमोरी क्वालिटी इस वजह से है हमारे पास कि आपके पास जो आपके सिस्टम की स्पीड होती है वो इस पर डिपेंडेंट होती है. यानी लेट्स से कि अगर आपके पास जो है वो एक मेमोरी भरती जा रही है, भरती एक टेबल टॉप है, टेबल टॉप के ऊपर जो है वो आपने एक चीज़ रखी, 2 4 5 10 15 20 चीज़ें रख दी. अब एक टाइम आएगा कि वो टेबल टॉप जो है वो बिल्कुल भरा होगा. अब अगर आपने नई चीज़ रखनी है तो आप क्या करेंगे? ज़ाहिर है वहाँ से चीज़ों को रिमूव करना पड़ेगा, ये चीज़ों को इतना जोड़ जोड़ के रखना पड़ेगा.
लेकिन अगर बहुत ज्यादा जोड़ के रखेंगे तो फिर वो यूज नहीं हो सकेंगी। सो अल्टीमेटली यू हैव टू रिमूव थिंग्स फ्रॉम योर टेबल टॉप। अब वो जो रिमूव कर रहे हैं वो इसी वजह से कर रहे हैं कि टेबल टॉप इज अ टेम्पररी एरिया। अगर आपने कोई पक्की पक्की चीज स्टोर करनी है तो यू शुड गेट अ शेल्फ, कोई कबर्ड, किसी उस चीज के अंदर रखो। टेबल टॉप पे तो हम इतनी चीजें नहीं भर सकते ना, सो वो हम उसको रिप्लेस करते जाते हैं। सेम यहाँ भी यही सूरत हाल है कि आपके पास एक बड़ा एरिया होता है, उसके अंदर जितनी जरूरत की चीजें होती हैं वो आती जाती हैं, और जैसे जैसे वो इस्तेमाल हो जाती हैं उनको वो रिमूव करता जाता है। अब रिमूव करने से क्या होगा कि वो जगह खाली रहेगी और वो आपकी स्पीड को सपोर्ट करता रहेगा। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि हम जब इसकी बात करते हैं तो हम आम तौर पे ये कहते हैं कि भाई जल्दी जल्दी डेटा सेव कर लो, कहीं लाइट ना चले। तो वो टेम्पररी मेमोरी भी वजह है, और एक और वजह भी है, वो ये है कि योर रैम इज अ वोलाटाइल मेमोरी। Volatile means the memory exists till we have the electricity. जब तक हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी होगी तब तक हमारी मेमोरी जो है वो एग्जिस्ट करेगी। जैसे ही सिस्टम से इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा वो मेमोरी वैनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। दैट विल नॉट बी इन योर यूज, वो आपके पास नहीं रहेगी। दो के मॉडर्न सिस्टम्स में कुछ थोड़ी सी कहानी, हल्की सी कहानी जो है वो चेंज हो गई है, बट यूजुअली जो इसकी प्रैक्टिस है वो यही होती है कि वो वोलेटाइल मेमोरी होती है और वो चेंज हो जाती है। अच्छा, नंबर 4 पॉइंट जो है ना वो बड़ा जबरदस्त है। वो क्या है? हम ये कहते हैं कि इट वर्क्स एज सीपीयू असिस्टेंट। ये सीपीयू की असिस्टेंट ही नहीं है, ये आपकी स्टोरेज स्टोरेज सबकी असिस्टेंट है। अच्छा, उससे पहले एक और पॉइंट लिखता हूँ, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। वो क्या होता है? डिस्प्ले। Your primary memory, यानी RAM, is responsible for the system display. That is very important. अब मैं इसकी एग्जांपल आपको दूं तो व्हेन यू स्विच ऑन योर सिस्टम, द फर्स्ट स्क्रीन अपीयर्स विद द कंपनी नेम ऑफ योर लैपटॉप, कंप्यूटर, जो भी आपके पास है, वो उसकी पहले कंपनी आ जाती है। देखो वो इस तरह से एक स्क्रीन आती है, उसमें कभी तोशिबा लिखा होता है, कभी डेल लिखा होता है, कभी एचपी लिखा होता है, जिसके पास जो सी भी कंपनी, और वो 2 4 5 सेकेंड्स 3 सेकेंड्स के लिए रहती है। उसके बाद स्क्रीन गोज ब्लैक एंड सडनली अ ब्यूटीफुल लोगो ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कम्स अप। यानी विंडोज का या जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो उसका एक बड़ा खूबसूरत सा लोगो जो है वो सामने आना शुरू हो जाता है, वो बबल करता है, वो घूमता है, ये जो भी उन्होंने सिस्टम रखा हो। दिस इज द टाइम फ्रॉम वेयर योर रैम स्टार्ट वर्किंग। और जब तक आप शट डाउन नहीं करोगे अपने सिस्टम को, रैम ने काम करते रहने। यानी वो जो विंडोज लोड होने वाली पोजीशन आई है ना, वो एक्चुअली आपकी रैम की वजह से। अच्छा, इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि लेट्स से कि रैम किसी वजह से खराब हो गई, हिल गई, किसी भी वजह से कोई से प्रॉब्लम हो गई। अब जब आप सिस्टम ऑन करोगे ना, वो ब्लैक स्क्रीन जरूर आएगी, वो जिसपे तोशिबा वगैरह ये वो लिखा होता है। लेकिन उस ब्लैक स्क्रीन के बाद जब वो दोबारा ब्लैक होगा और विंडोज का लोगो लाने के लिए रुकेगा, तो आपके सिस्टम ने 2 दफा बीप देनी है, टी टी करके वो बीप दे देगा, और आगे आपको एक मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा कि विंडो लोड नहीं कर पा रहा, कोई मसला मसाइल चल रहा, कॉन्टैक्ट योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, इस किस्म का कोई प्रॉब्लम जो है वो लिखा हुआ नजर आ जाएगा। नाउ व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि आपकी रैम नहीं काम कर रही, यानी बाकी सारी चीजें इंटैक्ट है। इतनी महंगी महंगी चीजें मेरे सिस्टम में लगी हुई हैं, दे ऑल आर वर्किंग टायरलेसली, बट इफ योर रैम इज नॉट प्रॉपरली इंटैक्ट, दैट मीन्स कि आपके पास जो है वो स्टोरेज वाला काम जो है वो हो नहीं सकता, डिस्प्ले वाला काम नहीं हो सकता। सो डिस्प्ले इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर रैम। अब मैंने कहा इट वर्क्स एज सीपीयू असिस्टेंट। नाउ व्हाट डज दैट मीन? देखो मैं इसमें एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। होता ये है कि आपने एक अच्छी सी सीडी बाय कर ली ऑफ अ मूवी। ये एक मूवी की सीडी है, उतनी गोल नहीं जितनी होती है, बट हम अज्यूम करते हैं ये वही है। यहाँ मेरी रैम है और ये मेरी स्क्रीन है, मॉनिटर स्क्रीन जो भी हो सकता है, ये मेरी सीडी डीवीडी जो भी है, ये मेरी रैम है।
अच्छा, पता क्या होगा, आपने पता नहीं कभी नोटिस किया कि नहीं किया कि व्हेन यू फर्स्ट डबल क्लिक ऑन द फाइल्स ऑफ योर सीडी, मूवी, या जो भी सीडी के अंदर जो भी डेटा पड़ा हुआ, गेम या कुछ भी, जब आप उसमें पहली दफा डबल क्लिक करते हो ना, एक दफा आपकी सीडी को मुसीबत पड़ जाती है। यानी लाइट्स ब्लिंक होनी शुरू हो जाती हैं, वो स्पीड से वर्क करती है, बाकायदा आवाज़ आती है उसकी, जितनी स्पीड से वो काम कर रही होती है। वो क्या हो रहा होता है, वो हो ये रहा होता है कि आपकी सीडी पे डिफरेंट सीन्स पड़े हुए हैं, डिफरेंट सीन्स हैं मूवी के। जैसे ही आपने उस पर डबल क्लिक किया तो वो रैम से पूछेगा कि भाई आपने कितनी जगह एलोकेट की हुई है सीडी के लिए। वो लेट से कहती है कि जी मैंने इतनी जगह एलोकेट की हुई है, विच मीन्स लेट से 1 GB उसने लेट से एलोकेट किया हुआ। अब होगा यहाँ कि तकरीबन हाफ ऑफ 1 GB का डेटा जो है वो इधर आ जाएगा आपकी रैम के अंदर। ये आ गया सारा डेटा, और आपकी स्क्रीन पे यहाँ से आपको डेटा आने लग गया। आपने डेटा देखना शुरू कर दिया, जो भी मूवी है या जो भी सॉन्ग जो भी चल रहा है वो आपको नजर आ रहा है। अच्छा, उसके बाद ये होगा कि जैसे ये डेटा यूज होते होते खत्म होने के करीब पहुंचेगा, यानी ये मेरे पास थोड़ा सा डेटा रह गया, ये देखो ना इतना सा रह गया, तो मीनवाइल क्या होगा कि यहाँ से दूसरा डेटा जो होगा उसको कॉल किया जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा और ये फिर दोबारा भर जाएगा। फिर इसमें तीसरा चंक आ जाएगा, फिर चौथा चंक आ जाएगा, और आप ये देखना कि हर दफा जब नया सीन शुरू होने वाला होता है, आपको तो नहीं पता लगता कि जी चंक खत्म हो गया है। सो आप किससे नोटिस कर सकते हो कि आपकी सीडी जो है थोड़ी देर के बाद खुद ब खुद थोड़ा सा शोर मचाना शुरू कर देती है, और वो बड़ा छोटा सा शोर होता है। उस दौरान जनरली तो स्क्रीन लैग नहीं होती है, पुराने सिस्टम्स में वो लैग भी हो जाती थी, रुक जाती थी स्क्रीन। तो वो क्या होता है कि वो वहाँ से डेटा कॉपी कर रही होती है, और कॉपी करके जो है वो आपको ट्रांसमिट करने की कोशिश कर रही होती है। सो दिस इज हाउ आवर रैम वर्क्स। तो रैम के लिए हमने कहा कि एक तो हाई स्पीड मेमोरी, number 2, it's a temporary memory. Number 3, it's a volatile memory. Number 4, it works as CPU assistant. And the most important part is that the RAM is used to display your data. Display it. It is responsible to provide display to the user. Without RAM, no matter how good the monitor you have या कितनी अच्छी आपके पास चीजें लगी हुई हैं, but without the RAM you cannot view anything. RAM के बगैर जो है वो आपका डेटा जो है that won't be transmitting, or that won't be easy to see. इसमें कुछ सवाल, if you have any question in RAM, जल्दी से पूछ लें, फिर हम डिस्कस करते हैं। सर ये हाई स्पीड के नीचे क्या लिखा हुआ आपने? टेम्पररी मेमोरी। ये अगर लिखना भी है तो लिख लेना। जी सर, वो एक एक चंक को रीड करके जो डिस्प्ले करती है। हाँ, एक एक चंक डिस्प्ले करती है ना। असल में देखो ना, रैम आपके पास लगी 2 GB की हुई है। अब 2 GB के अंदर इतने सारे काम हो रहे हैं, यानी ये जो आपका डेस्कटॉप है, ये जैसे मेरा डेस्कटॉप है, आपने ये हरकत नहीं करनी कि डेस्कटॉप पे इतना सारा सामान रख लो। मैंने तो इसलिए रखा हुआ है कि जाहिर है वो क्लासेस के हिसाब से, चीज़ों के हिसाब से मैं फौरन डबल क्लिक करूँ और मैं उसको एक्सेस करूँ। क्योंकि ये डेस्कटॉप जब आपकी सिस्टम ऑन होता है तो सबसे पहले ये जो डेस्कटॉप पे जितनी सारी चीज़ें हैं ना, ये सब लोड होती हैं। डेस्कटॉप का मतलब ये हुआ कि दीज आर द रेडी टू यूज थिंग्स। वो इनको फौरन लोड करता है, वो कहता है ये तो मेरे यूजर को किसी वक्त भी चाहिए होती होगी, इसने भी तो रैम में जगह ले ली ना। फिर दूसरे नंबर के ऊपर आपकी सिस्टम ट्रे के अंदर जितनी चीजें होती हैं, ऑल दोज थिंग्स व्हिच रिजाइड्स इन योर सिस्टम ट्रे हियर, ये वाली सारी चीजें जो है ये भी सबकी सब लोड होती है। अब जब ये सब लोड हो जाती है ना, तो आपकी रैम के पास जो बाकी जगह बचती है वो उस हिसाब से एलोकेट करती है। यानी वो जो एलोकेशन है, इट डिपेंड्स कि आप पहले कितनी मेमोरी यूज कर रहे हो, रैम की टोटल कैपेसिटी क्या है, उसके बाद वो एलोकेट करती है। वो फिर चंक्स मींस छोटे छोटे पार्ट्स करके जो है वो उठाना शुरू करता है डेटा। ज़ाहिर पूरा डेटा नहीं उठा सकता, उठा तो सकता है, उठाता नहीं है। मेरे पास अगर पॉसिबिलिटी हो कि जी जैसे मैं अपने साथ 5-6 चीज़ें जो है वो
लेके चलता हूँ जब घर से चलता हूँ, लेकिन हर स्कूल में या हर जगह जाते हुए मैं सारी चीज़ें तो नहीं निकालता ना। मेरे पास क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि जितनी चीज़ मैं कैरी कर सकता हूँ इजीली मैं वो लेके साथ चला जाऊँ, तो वो मैं साथ लेके चला जाता हूँ, बाकी वहीं पड़ी रहती है। सो रैम की भी जो है वो यही सूरत हाल होती है। और कोई क्वेश्चन? Well, I hope कि there are no questions. So मैं इसको थोड़ा सा अब इस साइड तक, हमने कहा जी रैम तो बड़ी जबरदस्त बना है, क्या बात है रैम की, ब्रिलियंट। अगली चीज आ गई रोम। अच्छा, रैम की इस बात से पहले जो है ना, वो रैम की दो टाइप्स भी होती है, वो भी डिस्कस करें। वैसे तो इनकी सब टाइप्स भी हैं, लेकिन हमें सिर्फ मेन टाइप्स ही डिस्कस करनी है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैम्स। अब मैं क्या कर रहा हूं, रैम की टाइप्स डिस्कस कर रहा हूं। There are two types of RAMs. One is called as SRAM and second is called as DRAM. SRAM is static random access memory or DRAM means dynamic random access memory. There are two types of RAMs, SRAM and DRAM. पहले ज़मानों में क्या होता था, अभी भी होता ये था कि जब आप एस रैम का मतलब हो गया स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम का मतलब ये हो गया कि आपकी रैम जो है वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश नहीं करती थी। Now, what is meant by that? It not automatically refresh your data. It means कि आप डेटा रखते रहे और एक टाइम होता था कि आपका सिस्टम डेड स्लो हो जाता था। हो सकता है आप में से किसी ने ये कभी एक्सपीरियंस किया हो। हमारी जनरेशन ने बहुत एक्सपीरियंस किया। डेड स्लो हो गया सिस्टम। नाउ थिंग्स आर लैगिंग, चल नहीं रही है, डबल क्लिक करो तो आपको वेट करना पड़ता है। नो, व्हाट शुड वी डू? द वन वे इज कि यू हैव टू रीस्टार्ट योर सिस्टम। बहुत रीस्टार्ट किया करते थे उस जमाने में। यू हैव टू रीस्टार्ट योर सिस्टम। वो क्या होगा, जब आप रीस्टार्ट करेंगे तो आपकी रैम के ऊपर जितना भी जंक है, जितना भी क्या जंक है, क्योंकि वो तो वॉलेटाइल मेमोरी है, जो कुछ भी है रैम पे सब फारिग। रैम ऐसे ब्रांड न्यू क्लीन नीट सब जगह उसके पास फारिग होगी और जाहिर आपको स्पीड अच्छी मिलेगी। तो ये जो डबल क्लिक होता है, विंडोज खुलती है बंद होती है, टैब्स वगैरह, ये सारा किस पे होता है? रोम पे, रैम पे? रैम, ये सब कुछ रैम पे होता है। रोम तो बेचारी थोड़ा सा काम करती है, अभी रोम को डिस्कस करते हैं। रोम का इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है, रैम का काम है इसका। वो रैम पे हो रहा होता है। अब एक तरीका तो ये है कि आप सिस्टम को रीस्टार्ट करो टू गेट बैक योर स्पेस। ये मैं स्टैटिक रैम्स की बात कर रहा हूँ। दूसरा तरीका ये होता था कि हम F5 की यूज करते थे। F5 इज रिफ्रेश, यानी ऐसे हम करते हैं ना, ये F5 देखो मैंने प्रेस किया, देखो रिफ्रेश हो रहा है। तो पहले क्या होता था कि जब पहली दफा F5 प्रेस करते थे ना, सिस्टम सो जाता था, कुछ जवाब ही नहीं देता था। उसके बाद फिर हमने क्योंकि 5-10 दफा ऐसे ऐसे या 5-10 दफा ऐसे या राइट क्लिक करके रिफ्रेश किया होता था, तो वो फिर एकदम ठक 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 करके होने लग जाता था। इसका मतलब ये होता था कि वो बेसिकली आपकी जो रैम है उस पर से डेटा उतार रहा है, यानी जो डेटा नहीं रिक्वायर्ड है उस डेटा को जो है वहां से फारिग कर रहा है। सो एस रैम क्या होती थी कि इट्स वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश नहीं होती थी। एस रैम नॉट रिफ्रेशेस इटसेल्फ ऑटोमेटिकली, स्टैटिक थी। वेयर एज डी रैम्स जो आजकल हम यूज कर रहे हैं ज्यादातर, DDR वगैरह जो डी रैम्स है, डायनेमिक रैम्स जो है। नाउ डायनेमिक रैम व्हाट इट कैन डू, it can refresh itself after given time। जो भी कंपनी ने उसके अंदर टाइम रखा हो, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 50 सेकंड, 10 मिनट, जो भी टाइम है, उस टाइम के बाद जो है वो रिफ्रेश होती है। रिफ्रेश का मतलब ये होगा जितना भी जंक है ना, जितना भी ऐसा काम है जो कि अभी यूज नहीं हो रहा, दैट वुड बी रिमूव फ्रॉम द रैम। उसको जो है वो जंक को साफ कर दिया जाएगा। अब जैसे देखो मेरे डेस्कटॉप पे कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने अभी यूज नहीं की। जैसे मैं ये Amazon वाला फोल्डर यूज नहीं कर रहा हूँ,
पेन टैबलेट यूज़ कर रहा हूँ, मैं जो लिख रहा हूँ ज़ाहिर है ये तो रहेगा। मैं प्री रीलीज यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं ये पे रोल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं ये टीम्स या LMS यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो क्या होगा कि शुरू में तो उसने सब अपने पास नोट कर लिया, लेकिन उसके बाद 5-10 मिनट के बाद इसने कहा कि यार ये तो यूज़ ही नहीं कर रहा यूज़र, तो इसको फारिग कराते हैं, वो उठा देगा इसको ऊपर से, और अल्टीमेटली आई विल गेट द बेटर स्पीड। और हर 10 मिनट्स के बाद वो ये देखा करेगा कि भाई कौन सी चीज़ आइडल है। जैसे ये मेरा देखो, ये फॉक्सेट आइडल है जिसमें मैं PDF देख रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा, खुला हुआ है लेकिन मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सो वो इसको बीच में से उड़ा देगा। उड़ाने का मतलब ये नहीं कि फाइल डिलीट कर देगा, रैम के पास तो सिर्फ इंस्टेंस है ना एक, तो वो इंस्टेंस जो है उसको रिमूव कर देगा, so that instance will be removed. So हम ये कह रहे हैं कि SRAM is static RAM which does not refreshes itself automatically, whereas DRAM refresh itself automatically. ये इसमें एक फर्क होता है। नंबर 2 जो फर्क होता है, DRAM can store more data than SRAM. पर जाहिर अगर डेटा ज़्यादा सेव करती है तो रिसोर्सेज भी ज़्यादा खाती होगी। DRAM stores more data than SRAM. DRAM uses more system resources than SRAM. SRAM से ज़्यादा सिस्टम रिसोर्सेज वो यूज़ करती है। चले आगे, कोई सवाल इसमें? सर आपने लास्ट पॉइंट ये बताया DRAM uses more system resources than SRAM. जी बिल्कुल यही बताया मैंने। DRAM uses more system resources than SRAM. सिस्टम रिसोर्सेज में पावर बेसिकली मेजर सिस्टम रिसोर्स पावर ही है ना ज़ाहिर है, और रैम को हम नहीं कहते ना। कुछ सिस्टम का CPU लगे होते हैं, आपने देखा होगा, जब लाइट चली जाए तो स्टैंड बाय हो जाते हैं, तो वो रैम पे जाते हैं या रोम पे जाते हैं? फिर से पूछिए, सिस्टम के साथ क्या लगे होते हैं? UPS लगे होते हैं स्टैंड बाय के लिए, जब इलेक्ट्रिसिटी आउट हो जाती है तो वो रैम पे जाते हैं, रोम पे जाते हैं उसको सिस्टम। वो कहीं भी नहीं जाते हैं, यूपीएस एक एक्सटर्नल डिवाइस है, वो उसका अपना मैकेनिज्म है, वो अलग काम कर रही होती है। उसे बोलते हैं ना यूपीएस, मेरा ख्याल होता है अनइंटरप्टेड पावर सिस्टम, यही होता है ना। तो उसका यूपीएस का तो रैम रोम के साथ कोई काम नहीं है, वो तो रैम रोम का काम तो इंटरनल है सिस्टम के अंदर। यूपीएस बाहर से इलेक्ट्रिसिटी को देख रहा है, असल में उसने तो सिर्फ ये देखना है कि सप्लाई जा रही है कि नहीं जा रही है। और रैम का काम ये है कि अगर सिस्टम को सप्लाई मिल रही है बाय एनी मीन्स, बैटरी से मिल रही है, सोलर से मिल रही है, यूपीएस से मिल रही है, डायरेक्ट जो है वो लेस्को शेस्को से मिल रही है, उसको इससे क्या फर्क पड़ता, चलती रहेगी। तो यूपीएस हैज नथिंग टू डू विद योर विद रैम एंड एनीथिंग एल्स। यूपीएस का काम जो है वो बाहर का काम है। ठीक है जी, मेरा ख्याल है कि और कोई सवाल नहीं है, तो अब हम रॉम करते हैं। द रॉम इज रीड ओनली मेमोरी। बचपन से छोटे होते हुए हमारे टीचर्स ने हमारे जहन में एक चीज घुसा दी है कि रॉम इज परमानेंट मेमोरी। ऐसे मैं क्यों कह रहा हूँ मैं बताता हूँ। तो हमें शुरू से जो है वो एक चीज बताते हैं कि रॉम जो है वो इट्स अ परमानेंट मेमोरी। नंबर 2 पे हमें जो दूसरी चीज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं वो हम कहते हैं कि इट्स अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। एक ही बात है, परमानेंट मेमोरी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी। Even though electricity is not connected with your system,
So the data in ROM will remain there. The data will not be deleted. The permanent memory means कि आप इसके बारे में हमेशा से एक चीज पढ़ते आए हैं, वो ये पढ़ते आए हैं कि we can read या कहना चाहिए we can only read, watch, see, but we can't modify data in ROM. यानी ROM का मतलब ये है कि ROM एक ऐसी जगह है कि जिसमें हमारे पास डेटा होता है जो कि हम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बट हम उसको डिलीट नहीं कर सकते। ये हम हमेशा ROM के बारे में पढ़ते आए हैं कि आज हम मिथ गलत साबित कर देंगे। सो वीओ लेवल तक भी आपने शायद यही पढ़ा होगा कि ROM में जो डेटा होता है वो इट स्टेज देयर, इट स्टेज एज सेम, जैसे वो है वो वैसे ही रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला। सो ये हमारे पास जो है ये ROM है। अच्छा, आज एहसान नहीं है। अच्छा, सो ये हमारे पास आ गई दो इसकी क्वालिटीज आ गई। कोई मुझे ये बताएगा कि व्हाई वी यूज ROM, क्या स्टोर करती है? इसके अंदर जो भी डाटा होता है वो रोम कहलाता है, उसका मतलब परमानेंट डाटा होता है, वो डिलीट नहीं हो सकता कभी भी। अच्छा, होता क्या है? Programs, windows and functions. अच्छा, विंडोज एंड फंक्शन होता है, ओके। और कोई अपनी एक्सपर्ट राय देना चाहे? मेरे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, ROM जो है वो अपने पास बायोस को स्टोर करती है। तो व्हाट इज बायोस? बायोस का आज का मॉडर्न नेम जो है, बायोस का नेम होता है बूट स्ट्रैप लोडर। Now, what is meant by BIOS? BIOS stands for Basic Input Output System। जब आप सिस्टम ऑन करते हैं और आपके पास वो जो पहली काली स्क्रीन आती है बिफोर द रैम स्टार्ट्स इट्स वर्क, वो जो काली स्क्रीन होती है तो उस दौरान बायोस चल रही होती है। बायोस में होता क्या है? all the configurations of attached devices, यानी कि आपकी हार्ड डिस्क कौन सी लगी हुई है, वही लगी हुई है, क्या वो ठीक चल रही है, कीबोर्ड कौन सा लगा हुआ है, स्क्रीन कौन सी लगी हुई है, रैम कौन सी लगी हुई है, फलानी चीज कौन सी है, VGA कौन सा लगा हुआ है, वो हर चीज को चेक करता है। और चेक करने के बाद अगर सब चीजें ओके हो तो आपको आगे जाने देता है, यानी अपना जो कंट्रोल है वो रैम को दे देता है। और अगर सब चीजें ओके ना हो तो वो आपको देयर एंड देन रोकेगा और स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ जाएगा एरर नंबर समथिंग समथिंग, कॉन्टेक्ट योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर फॉर द सपोर्ट। यानी आपका सिस्टम ही रन नहीं होगा, अगर उसे हार्ड डिस्क नहीं मिलेगी तो आपका सिस्टम रन नहीं होगा। जो आप बता रहे थे ना कि जी विंडोज होती है बेटा, वो हार्ड डिस्क में होती है, ये बड़ी स्टोरेज होती है, ROM तो बेचारी थोड़ी सी स्टोरेज होती है। सो ROM जो है इट स्टोर्स बायोस। बायोस मीन कि all the data regarding all the data, यानी इसका मतलब ये होता है कि all the data and the configuration regarding attached, जितनी भी attached devices होती हैं उसमें होता है। आमतौर पे ROM तो 4, 6, 8 MB की इतनी सी ROM होती है, ROM इतनी बड़ी नहीं होती। रैम तो आप देखो जीबीज में बात करते हो, 8 GB की रैम लगवा ली, 16 GB की रैम लगवा ली, 32 GB की रैम लगवा ली। 32 की तो मेरा ख्याल अभी लोग नहीं लगवाते, सर्वर्स में लगी हुई होगी, बट 8 GB और 12 GB ये तो बड़ी आम चल रही है, तो कई लोग ने लगवाई हुई है। सो हमारे पास ROM जो है वो बायोस स्टोर करता है।
अच्छा, आपने शायद कभी नोटिस किया हो कि जब आप सिस्टम को शट डाउन करते हो, स्पेशली लैपटॉप्स को शट डाउन करते हो, कितना पेनफुल काम है। आप बटन दबाते हो, रात को अगर मैं शट डाउन कर रहा हूँ, जाहिर है उसको हम उसी सूरत में शट डाउन करते हैं कि बड़ी नींद आ गई है, आप सिस्टम को गोलियां डाल रहे होते हो, वो आहिस्ता 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 शट डाउन हो रहा होता है। यानी पता नहीं आपने कभी नोटिस किया है कि नहीं किया, उस टाइम के ऊपर तो दिल करता ना कि ऐसे चुटकी बजे और सिस्टम बंद हो जाए। लेट्स से अगर वो मैंने बैग में भी रखना है किसी जगह पे सो वो आहिस्ता आहिस्ता क्यों कर रहा होता है? वो आपकी इन बायोस को अपडेट कर रहा होता है, आपकी बायोस को बता रहा होता है कि भाई ये इस वक्त फलानी चीज है। वो कहता है जी हार्ड डिस्क फलानी कंपनी की लगी हुई है, इतने जीबी की हार्ड डिस्क है, या टेराबाइट की हार्ड डिस्क है, ये उसके बूट सेक्टर्स काम करते हैं, ये काम नहीं करते हैं, वो सारी डिटेल भर रहा है इसके अंदर। आपकी रैम ये लगी हुई है, आपका वीजीए ये लगा हुआ है, आपका साउंड कार्ड ये लगा हुआ है, आपका मॉडेम ये लगा हुआ है अगर लगा हुआ है, या कार्ड्स लगे हुए हैं, वो सब डिटेल जो है वो डालता है, फिल करता है व्हेन यू आर शटिंग डाउन योर सिस्टम। और अगली दफा जब आप स्विच ऑन करते हो तो उसी इंफॉर्मेशन को वो मैच कर लेता है। अगर इंफॉर्मेशन मैच हो गई है तो वेल एंड गुड, इट्स गुड टू गो। और अगर इंफॉर्मेशन मैच नहीं हो रही तो वो दोबारा चेक करेगा कि चलो मैच नहीं हो रही तो वो तो एक अलग मसला है, क्या चीज चलेगी, और अगर चीज नहीं चल रही तो फिर। अच्छा, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपको चीज बताता हूँ। मुझे यहाँ एक कीबोर्ड नजर आ रहा है, एक आई कैन शो यू, मेरा ख्याल नजर आ ही रहा होगा, आ रहा नजर कीबोर्ड। जी सर। जी, ये कीबोर्ड जाहिर है, मतलब मुझे ना भी दिखाता तो आपने मेरी बात मान ही लेनी थी। ये कीबोर्ड जो है इसमें आमतौर पे 3 लाइट्स होती हैं। ये अब कभी जब डेस्कटॉप ऑन करो ना सिस्टम, ये गौर करना, सिस्टम ऑन करके स्क्रीन पे ना देखना, कीबोर्ड की तरफ देखना। आप ये नोटिस करोगे कि ऑन होने के हाफ ऑफ द सेकेंड या 1 सेकेंड के अंदर इसकी तीनों लाइटें ऐसे जलती हैं और बंद हो जाती हैं। यानी इवन कि मैंने नहीं भी चलाई, यानी मैं नम लॉक ऑन करूंगा तो लाइट जलेगी ना, मैं कैप्स लॉक ऑन करूंगा तो चलेगी, मैंने नहीं भी चलाई तो वो एक दफा लाइट्स ऐसे फौरन ब्लिंक होगी। अच्छा, वो ब्लिंक क्यों होती है? आपकी रोम काम कर रही होती है। रोम पता क्या करती है, इस केबल से हमारे पास करंट आता है, करंट आने के बाद वो पूरे सिस्टम के सर्किट में फिर के जाता है। तो अगर तो चक्कर पूरा हो गया तो इसका मतलब है कीबोर्ड ठीक काम कर रहा है, और अगर चक्कर पूरा नहीं हुआ, इधर आके रुक गया, इसका मतलब है कि कीबोर्ड सही काम नहीं कर रहा, आपको एरर आ जाएगा। लेकिन अब आजकल के ज़माने में अगर कीबोर्ड सही काम नहीं कर रहा हो तो एरर नहीं आता, क्योंकि टच स्क्रीन हैं, माउस राउट से हम काम कर सकते हैं। सो हमारे ज़माने में ये एरर आया जाता था। लेकिन मैं सिर्फ आपको इतनी बात कह रहा हूँ कि आप इन 3 लाइट्स को चेक कर सकते हैं अगर आप, इफ़ यू रियली वांट तो यू कैन चेक दैट कि आपके पास रोम जो है वो ऐसे काम करती है। अच्छा, अभी मुझे किसी ने ये भी कहा कि रोम में जो डेटा होता है वो कभी जाता नहीं है, रोम में जो डेटा है वो कभी डिलीट नहीं होता। बड़ा सीरियसली ऐसी आपने किसी ने बात की, हम इस बात को भी निगेट करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोम्स, रोम की डिफरेंट टाइप्स होती है। वो क्या है मैं यहाँ लिखता हूँ, रोम टाइप्स। टाइप 1 is called as EFROM. Type number 2 called as EPROM. Type number 3 called as EPROM, और खाली एक PROM भी होती है। EFROM stands for Flash Read Only Memory। ये PROM ना डिस्कस करें, उसमें भी लिखी हुई तो रहने देते हैं। इसके अलावा भी टाइप्स होती हैं, बट हम सिर्फ ज़ाहिर वही डिस्कस कर रहे हैं जो कि रिक्वायर्ड बाय आवर एग्जामिनर। जो 3 का हमें पता होना चाहिए। EFROM इज अ फ्लैश रीड ओनली मेमोरी। F is for flash. Flash ROM can be updated once.
अच्छा, आप में से कितने लोग एंड्रॉयड यूजर हैं? एंड्रॉयड यूजर अच्छा, मेरा पहला 2-3। ओ वेरी गुड। पीछे जो है वो अब्दुल्ला, तुमने हाथ ऊपर नीचे कर लिया, इसका मतलब कि हो के आधे हो और आधे नहीं हो। अच्छा चले जी, पहले 3 हाथ आए थे तो उसके हिसाब से तो मेरा ख्याल है कि हमारे पास जो है मोर देन लाइक 75% यूजर्स जो है वो एंड्रॉयड है। असल में मेरा ख्याल है कि यही कहानी है। कभी मोबाइल फोन को रूट किया, ये रूट बोलते हैं ना, ऐसे ऐसे लिखते हैं रूट। कभी रूट किया मोबाइल फोन को? मैं कुछ साल पहले तक मैं भी एक एंड्रॉयड यूजर था। जब मैं एंड्रॉयड यूजर था तो मैंने ना एक बड़ा सस्ता सा एक मोबाइल लिया, कोरियन मोबाइल उस जमाने में आते थे बड़े अच्छे। मुझे कंपनी का नेम याद नहीं है, लेकिन वो ना गेमिंग शेमिंग के लिए बड़ा जबरदस्त यूज होता था। उसमें वो स्नैप ये वो बड़ा जबरदस्त लगा। मैंने वो ले लिया। अच्छा, वो लेने के बाद जो है ना, वो मुझे ये पता लगा कि जी ये तो कोरियन मोबाइल है। कोरियन मोबाइल में एंटीना होता था, वो एंटीना नजर नहीं आता था, अंदर होता था, लेकिन एंटीना होता था उसमें। सो अब जब मैं गेम्स को इंस्टॉल करने लगता तो वो करने नहीं मुझे देता। ये तो इस फर्मवेयर के लिए हमने गेम बनाई नहीं है। अच्छा, अब क्या करूं? अब मैंने फिर इंटरनेट को सर्च करना शुरू किया। रूट की एक ऑप्शन मेरे पास आया। रूटिंग ये होता है कि आप अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर जो है उसको अपग्रेड कर देते हैं इन रॉम, यानी जो आप अपग्रेड करते हैं वो आप इसके अंदर अपग्रेड कर देते हैं, फोन के अंदर मैं बात कर रहा हूं। वो जनाब मैंने जरूरत से ढूंढा। मुझे एक वियतनाम की एक वेबसाइट मिली, उसके ऊपर जो है वो किसी ने सैमसंग का उस वक्त का जो भी मॉडल होगा उसकी रूट फाइल्स लगाई हुई थी। मैंने वो जनाब फाइल सारी कॉपी की, जो भी उस पर तरीका लिखा हुआ था मैंने उस तरीके को फॉलो किया और खुद ही सिस्टम को रूट कर दिया मोबाइल फोन को। वो जनाब 1 घंटे की मेहनत के बाद, अच्छा यही काम जो है ना मैंने किसी और से पूछा तो शॉपकीपर उसने मुझे कहा कि जी उस जमाने में, मैं कोई 8-10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो उस जमाने में उसने जो है वो मेरे से 1,000 के 2,000 रुपये मांग लिए कि ये जो भी भाईजान ये रूट होगा और इसके 2,000 रुपये मैं लूँगा। मैंने इंटरनेट पर सर्च किया, खुद मिल गया। कंप्यूटर का ज़ाहिर है इतना फ़ायदा तो होना चाहिए। और मैंने जो है वो रूट करने से क्या हुआ कि वो सैमसंग बन गया। हार्डवेयर वही कोरियन ही रहा, विच वॉज वेरी गुड, हार्डवेयर बहुत अच्छा था उसका। और उसका जो इंटरफेस है, उसका जो ऐप स्टोर है, जो बाकी चीज़ें हैं, वो सब की सब जो है वो सैमसंग वाली होगी। बस ठीक है, वो मैंने कोई 1-2 साल मोबाइल यूज़ किया और अभी भी शायद किसी ब्रांड में संभाला हुआ पड़ा हो। सो ये होती है रूटिंग। एफ्रॉम जो है, एफ्रॉम का मतलब क्या है? यू अपग्रेड योर सॉफ्टवेयर वंस। अपग्रेड की बात कर रहा हूं, डाउनग्रेड नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, सिर्फ एक दफा आप अपग्रेड कर सकते हो अपने सॉफ्टवेयर। इसको हम लोग कहते हैं एफ्रॉम। अच्छा, एक दफा इतनी लिमिटेशन, इतने पैसे देके मैंने मोबाइल या लैपटॉप या टैब खरीदा, लिमिटेशन इतनी तो नहीं ना होनी चाहिए। फिर क्या करें? फिर ईपी रॉम है। ईपी रॉम का मतलब क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रॉम का मतलब ये है इरेजेबल प्रोग्रामेबल read only memory. It's a memory which can be erased once and programmed once. यानी कि एफ्रॉम में क्या हो रहा था? You can only upgrade, but here what you can do, you can totally erase your software and you can install the new version, new one. It could be a downgraded, it could be an upgraded. एक दफा कंप्लीटली डिलीट करके
you can install the new one. ये हमारे पास होती है EPROM. Then we have EEPROM. Electronically, the first E represents as electronically erasable, programmable, read-only memory. Electronically erasable, programmable, read-only memory. And you can erase your and program it as many times as you want. जितनी दफा दिल करता है, डिलीट करो, नया करो, डिलीट करो, नया करो. अब हमारे मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, टैब्स वगैरह जो है वो सब के सब जो है वो यही EEPROM के साथ ही हमारे पास आते हैं. तो मेरा ख्याल है ये जो मिसकॉन्सेप्ट हमारे जहन में हमेशा से बैठा हुआ है कि जी हम इसको अपग्रेड नहीं कर सकते, रॉम में जो डेटा चला गया बस वो दफन हो गया, अब वो वहां से हिल नहीं सकता है. इट्स नॉट लाइक दैट. RAM is pretty much upgradable, RAM is pretty much writable, but ज़ाहिर है शुरू में नहीं थी तो उसका नाम वही है, but things have been changed. और पहले तो शुरू के ज़माने में तो ROM वर्चुअल होती थी, अब वर्चुअल नहीं है, ROM एक्चुअली फिजिकली एग्जिस्ट करती है. इट्स अ चिप, एक छोटी सी चिप आपके मदरबोर्ड के ऊपर प्लेस की जाती है. पहले नहीं होती थी, ये वर्चुअल होती थी. हम कहते थे होती है, कहीं होती होगी, कहीं स्टोर करती होगी. अब ऐसा नहीं है, इट्स एक्चुअली देयर. तो ये हमारे पास जो है रॉम होती है. इसमें कोई सवाल ज़हन में आता हूँ? सर कभी कभी हम अपना कंप्यूटर जो है वो स्लीप पे लगा देते हैं और तभी बायोस रन करता है जब हम स्लीप पे करते हैं. तो उसको जब आप स्लीप से उसे उठाने की कोशिश करते हैं तो आपके पास पहली स्क्रीन क्या आती है? विंडोज आती है कि आपके सिस्टम का लोगो आता है? सोचें. आपकी जो लॉगिन स्क्रीन होती है ना वो आती है. तो इसका मतलब है रॉम काम नहीं करती. रॉम का काम जो है वो सिस्टम स्टार्टअप से है. इसलिए तो हम कह रहे हैं बूट स्ट्रैप लोडर, बूटिंग, द स्टार्टिंग प्रोसेस ऑफ योर सिस्टम. सिस्टम अगर स्लीप पे है तो वो स्टार्ट तो नहीं ना हो रहा, तो वो तब रैम काम कर रही होती है, तब रॉम का कोई काम नहीं होता. रॉम सिर्फ दो ही सूरतों में होता है, प्रॉपर शटडाउन, प्रॉपर शटडाउन. ये जो एकदम झटके से भी बंद होता है उसमें भी ज़्यादा रॉम को टाइम ही नहीं मिलता अपडेट करने का कुछ भी. या प्रॉपर start of your computer. These are the two times when your ROM works. Otherwise, ROM is pretty much kind of a part which we are not using. और कोई सवाल? तो ये बूट डिवाइस क्या होता है? मुझे नहीं समझ आई क्या क्या होता है. आप प्लीज कम अगेन, मुझे फिर बताइएगा क्या आप पूछ रहे हैं. सर बूट डिवाइस, कभी कभार मैं अपना लैपटॉप ऑन करूं सर वो आता है कि बूट डिवाइस नॉट फाउंड. जब आप बोले ना आपके साथ एकदम कोई और बोला, मुझे लिख के बता दो, चैट पे लिख के बताओ. लोड डिवाइस है कह रहे हो, चैट पे लिख दो जरा फौरन से. बूट डिवाइस, हाँ कम ऑन. बूट डिवाइस इज व्हाट? आपकी विंडोज को चलने के लिए ना, ऑपरेटिंग सिस्टम को चलने के लिए 8-10 फाइलें चाहिए होती टोटल. इतनी जीबी की विंडोज होती है लेकिन वो 8-10 फाइल्स होती हैं जो कि इसको चलाती हैं. कुछ लाइब्रेरीज होती हैं, कुछ एक्सी फाइल्स होती हैं, उन्होंने इसे चलाना होता है. तो हम क्या करते हैं कि अपने सिस्टम को आर्टिफिशियली रन करने के लिए हम आमतौर पर बूट डिवाइसेस बना देते हैं. अब तो आप अपनी यूएसबी को बूट डिवाइस बना सकते हो. सीडी या डीवीडी जिसमें आपकी विंडोज इंस्टॉल होती है वो ऑलरेडी बूट डिवाइस होती है. तो हम वो लगाते हैं. आपकी रॉम चलती है, रॉम चलने के बाद वो सिस्टम में ढूंढती है कि भाई किस जगह पे वो 8 फाइल्स पड़ी हुई हैं. वो 8 फाइल्स आपकी लेट से यूएसबी में पड़ी हुई हैं. वो 8 फाइल्स को पढ़ता है
8 या 10 जितनी भी फाइल्स होती हैं, और पढ़ने के बाद आपके सिस्टम को बूट कर देता है। अब वो एक अलग बात है कि जब वो बूट कर दे तो या तो उसे इंस्टॉलर मिल जाता है कि इंस्टॉल करो नई विंडोज, या कई दफा हम सिर्फ बूट डिवाइस इसलिए लगाते हैं कि बूट करके हम उसके एरर्स को फाइंड आउट कर सकें कि विंडोज क्यों नहीं चल रही है, या हम बैकअप ले सकें। तो वो बूट करके आपका सिस्टम ऑन कर देता है। यानी वो 8 फाइल, 10 फाइल्स, 15 फाइल्स जिसने सिस्टम को, एसेंशियल फाइल्स हैं जिसने सिस्टम को ऑन करना, विंडोज को ऑन करना, ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन करना, वो बूट डिवाइस में होती है। तो आम तौर पे हम बूट डिवाइसेस बना लिया करते हैं बाय यूजिंग, अब तो यूएसबी से हो जाती है। पहले ज़मानों में हम फ्लॉपी के अंदर बूट डिवाइस बना के रखा करते थे, फ्लॉपी करवाते थे, और जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता था वो एक सीडी के अंदर होता था। फ्लॉपी से बूट किया उसने, उसके बाद सीडी से उसे बताया कि भाई फलानी फलानी जगह पे विंडो इंस्टॉल कर दो, और तब विंडो इंस्टॉल करने का काम होता था। यानी काफ़ी एक्सपर्टीज चाहिए होती थी कि जी उसको पार्टीशंस को ख़त्म करना है, फिर नई बनानी है, कैसे बनेगी। अब तो मज़े लग गए, अब तो एक क्लिक पे राइट क्लिक करके ही आप सब फॉर्मेट करके हर काम कर लेते हो। सो अब बूट डिवाइस की ज़रा ज़रूरत निस्बतन कम पड़ती है अलग से, बट ये बूट डिवाइस होती है। और कुछ? अब 2-1 मिनट रह गए, सो आई एम नॉट discussing anything new. You can ask question if you want to. So मैं रिकॉर्डिंग भी बंद करता हूँ।